Hello, good morning. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। दिन में से काफी कम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं रोज। Okay, so this one is our last derivation for this chapter. That is shear stress distribution over circular section. पूजा भाई बोली उससे पहले क्या होता है? चलो फटाफट बोलो, अपने क्लास को ज्वाइन करें। कितनी लेट? मैडम बस रास्ते में आ रहे हैं। पांच ही लोग हैं सिर्फ।
हेलो, आप लोगों को समझ तो आता है ना सब्जेक्ट? क्या मैम? समझ में आता है ना, मैं पढ़ाती हूँ वो। वो फीडबैक पूछ रहे हो मैम? क्यों नहीं आता है? आता है। तो फिर जो नहीं आता है वो पूछो। फिर मुझे कैसे पता चलेगा क्या समझ में नहीं आया? आप लोग असाइनमेंट करोगे खुद से तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो असाइनमेंट खुद से करना। या मैम। और अगर कोई गुड मॉर्निंग, और असाइनमेंट में अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं तो फिर वो पूछ लेना। असाइनमेंट में सभी मेथड के न्यूमेरिकल दे दिए। और हाँ, आप लोग कब फ्री हो? आप लोगों की कॉलम एंड स्ट्रेट की वो, अरे सॉरी, डायडिक एंड बेंडिंग स्ट्रेस की टेस्ट लेनी है, एमसीक्यू। 20 मिनट्स की होगी शायद। मैम તમે બોલો ને ત્યારે તમારો અવાજ કપાઈ જાય છે. कब होगी टेस्ट मैम? वही मैं पूछ रही हूँ, आप लोग फ्री कब हो? फ्री मैम, जब आप जब बोल रहे हो। मतलब आपके लेक्चर कब नहीं है? 1 घंटा ऐसा कोई फ्री हो तो तब? મેમ લેબમાં જ લઈ લો ને આની. લેબ हाँ तो तो लैब के टाइम ના તમારા આની બંને લેબમાં લઈ લો ને मैडम પણ. लैब में સાથે નથી ને? સિવિલ હા મિકેનિકલ ના અમારે અલગ અલગ છે. બંનેની લેબ આની સાથે છે. સિવિલ મિકેનિકલ ની સાથે લેવા આવે હા છે મેમ અલગ અલગ છે. એટલે જ તો. नहीं ના मैम, ના अलग નથી अलग। આવતી નથી આવતી. वही तो। अंकित, आप लोगों की लैब कब होती है? मैम कल है मेरा, ट्यूसडे को मैम। તમારી ક્યારે વેડનેસડે હોય છે ને? હા વેનસડે હોય છે મેમ. यस मैडम। अंकित, ट्यूसडे आप लोगों का क्या वो टाइम है? दोनों का अलग अलग पेपर ले लेते हैं। मेरा मैम, हम हाँ लोग का हाँ 1:50 से मैम 50। 1:50। हाँ ઓકે ને 150 ને આશુતોષ તમારું શું હોય છે? મેમ સેમ વેનસડે 150. ના ના, ટ્યુઝડે 150 ટ્યુટોરિયલ મેથ્સનું. મેક્સ કોણ લે છે? પંક્તિ મેમ? હા મેથ્સનું ટ્યુટોરિયલ હોય છે. पंक्ति હા मैडम, पंक्ति मैडम। પંક્તિ પંક્તિ મેમ. મેડમ, હું પંક્તિ મેડમ ને પૂછું, ચલો ને એવું हाँ હોય તો કાલે રાખી દઈએ. ओके मैडम। ઓકે મેમ. ઓકે સારું, તમને ઇન્ફોર્મ કરીશ અગર હું પૂછીને મેડમ ને. ઓકે મેમ. Okay, now this shear stress distribution over circular section. For this derivation, you must know integration and differentiation, because उसके बेस पर ही ये हमारा derivation है, तो इसलिए आपको integration differentiation आना चाहिए. Okay, so here it is a circular section. So here it is a circular section whose center is O. This is my neutral axis, or we can say that is your मैडम आपकी वॉइस diameter. नहीं आ रही। नहीं आ रही, आज प्रॉब्लम लग रहा है शायद. एक मिनट. हाँ, તમારો અવાજ નથી આવતો. હા हाँ બોલો हाँ, છો કે નહીં? एक मिनट.
Okay, so now here it is a circular section. Okay, यहाँ पे एक मेरा circular section है जिसका center क्या है O. ये मेरा एक circle है जिसका center है O. This is my neutral axis. Okay, and A, that is my neutral axis, or we can say it is our diameter of a circle. Okay, now let we assume a strip EF. मैंने क्या किए, एक एकदम थिक जिसकी थिकनेस बहुत कम है, ऐसी एक स्ट्रिप अज्यूम की है. ओके, एट y डिस्टेंस फ्रॉम O से y डिस्टेंस पे आई अज्यूम अ स्ट्रिप. ओके, so this is a my strip, that is EF. So EF is a my strip which I assume from at a y distance from O. Okay, now this point is B and this is the radius of a strip. Okay, so this point is B and this is the radius of a strip. Okay, so इतना है मेरी इस diagram के अंदर. Now what is our shear stress equation? That is tau is equal to FAY bar upon IB. Okay, so we have to use this equation for each and every derivations. Okay, now R is equal to what? That is equal to your radius of a section. Okay, this is my radius. So this R is equal to my radius of a section. F is equal to shear force on circular section. Okay, suppose F जितना shear force मेरे section पे circular section पे लग रहा है, E is equal to what? Sorry, this is not E, that is equal to EF. Okay, यहाँ पे correct करना. EF is equal to what? EF is equal to my strip. Okay, so that is equal to my strip of a circular section जो मैंने assume की. Okay, I assume a strip that is equal to EF. So EF is equal to my strip. EF is equal to my strip. So it is EF. Okay, so EF is equal to strip, which I assumed. Now what is Y? Y is equal to distance of EF strip from neutral axis. Okay, so this is my distance Y. This is my distance Y. This is my Y is equal to what? That is equal to my distance from neutral axis. Okay, distance of a strip. किसका distance है? Strip का distance है. कहाँ से distance है? From neutral axis. So Y is equal to my distance from the neutral axis. What is AY bar? AY bar is equal to moment of shaded area. Okay, here it is my shaded area. Okay, जो मैंने stream assume की, strip assume की है ना, that is that is shaded area. तो उसका जो मोमेंट है, सो दैट इज इक्वल टू मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स की मोमेंट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एरिया? दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस. ओके, सो हियर माय एरिया इज इक्वल टू y and y bar is equal to my distance. So y, my moment of shaded area is equal to AY bar. Okay, now what is कैपिटल आई? कैपिटल आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर मैं यहाँ पे जो आपका ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर व्हाट इज माय कैपिटल आई? इस इक्वेशन के अंदर कैपिटल आई इज इक्वल टू माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन? क्या होगा सर्कुलर के pi लिए? by 64 d square. Yes, that is equal to pi by 64 d4. Okay, now b is equal to width of strip. Okay, जो मेरी strip है, जो मैंने assume की है, उसकी width है small b and dy is equal to strip thickness. Okay, जो strip की thickness है, suppose I am assuming that is equal to dy. Okay, जो मेरी small strip है उसकी thickness suppose I am assuming that is equal to small dy. Okay, so ये जो मैंने consider किए हैं parameters वो मैंने पहले list out किए. Now what is the area of strip? Okay, मेरी strip एकदम okay, so now what is the area of strip? Area of strip A is equal to सपोज ये एक मेरी पतली सी स्ट्रिप है. ओके, मैंने मेरा ये जो सर्कुलर सेक्शन है उसमें मैंने एक पतली सी स्ट्रिप कंसीडर की है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप? सो दैट इज इक्वल टू माय एरिया इज इक्वल टू b into dy when b is equal to this base and dy is equal to thickness of the strip. Okay, so my area of this strip is equal to b into dy. Okay, that is equal to b width into thickness. Okay, now
सपोज ये जो मैं एरिया दे रही हूँ that is only for the small strip. Okay, so suppose I am denoted that area by DA. So what is DA? DA is equal to area of the small strip. Okay, area क्या होता है? Width. Area क्या होता है? Area is equal to width into thickness. But this is area. This area is for the small strip only. Okay, that's why let's we denoted it as a DA. So what is my DA? My DA is equal to EF into DY. What is EF? यहाँ पे आते हैं हम. ओके, सो माय एरिया इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू EF. सो दिस इज माय EF, मतलब इसकी जो थिकनेस है ना, दैट इज इक्वल टू माय EF. ओके, दैट इज इक्वल टू B, जो हमने लिया था B. सो एरिया इज इक्वल टू B इंटू DY, थिकनेस जो हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है. ओके, जो मेरी स्ट्रिप की थिकनेस है. ओके, वी कैन एबल टू सी बिकॉज हमारे पास वो उसका एलिवेशन है. ओके, सो थिकनेस जो अभी हमें दिख नहीं रही है, तो माय एरिया इज इक्वल टू B इंटू dy, where B is equal to E into F. So my area of this strip, that is equal to EF into dy, when EF is equal to this distance and dy is equal to, that is equal to thickness of the strip. Right? Now okay, now so what is EF is equal to? Okay, ये जो मेरा सर्कुलर सेक्शन है. Okay, तो in this circular section, okay, this total distance is EF. और यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है ना, that is इसको मैं B नाम दे रही हूँ. ओके, सो दिस इज E, दिस इज F, और ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जहाँ पे मेरा ये पॉइंट टच हो रहा है, जो डिस्टेंस मैंने मेंशन किया है, दिस पॉइंट इज इक्वल टू B. ओके, सो आई कैन राइट EF इज इक्वल टू ट्वाइस B. मैं से ट्वाइस EB मैं ऐसे लिख रख सकती हूँ. ओके, सो दिस इज 2 टाइम्स EB इज इक्वल टू EF. ओके, सो यहाँ पे okay, so what is EF into EF is equal to 2 times EB. okay, I can write it into dy. now Pythagoras. okay, Pythagoras क्या है? ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है, इन दिस ट्राइंगल, इफ अगर इस ट्राइंगल के लिए मैं अगर पाइथागोरस, ये जो मेरा ट्राइंगल है ना, EBO, ओके, सो फॉर ट्राइंगल, so for this triangle, this is E, this is B, this is O. okay, तो for triangle OEB, for triangle OEB, okay, what is EB is equal to? EB is equal to, ये मेरा distance क्या है? R, radius है. okay, here it is a radius of the circle. okay, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया है, आप लोग मत लिखना. okay, so EB is equal to what? under root ये जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू y. ओके, ये जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्ट्रिप का, दैट इज इक्वल टू y. आपकी फिगर में देखो. ओके, सो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज r. दैट इज माय रेडियस ऑफ अ सर्कल. नु जो ढूल जाएगा. ओके मैम. हाँ, हेलो मैम. हाँ बोल. मैम, EB is equal to R कैसे થયું? આપણે સર્કલમાં EB is equal to R નથી, OE is equal to R છે. ઓકે ઓકે. આઈડુઆ આ રેડિયસ છે ને, OE is હા હા. equal to R. okay, and this is this distance is y. okay, આજે distance જે assume કર્યું છે, that is equal to y and this is my radius of a circle. that's why suppose my radius is equal to R. okay, R is equal to radius of a circular section. okay, so now, so in circle OEB, so in in triangle OEB, so in triangle OEB, okay, my B is equal to EF. okay, all of you know कि ये
F है. Okay, so my B is equal to EF, so that is equal to twice EB. So my B is equal to EF is equal to 2 times E into B. ओके, ये समझ आया. नाउ इन ट्राइंगल ओ ई बी, इस ट्राइंगल के अंदर लेट्स वी अप्लाई पाइथागोरस. तो इफ यू अप्लाई पाइथागोरस, तो व्हाट इज माय ई बी इज इक्वल टू, ई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है. ओके, ये नहीं आएगा. So EB is equal to under root r square minus y square. Okay, so that is equal to Y under square. root r square minus y square. So ये जो वैल्यू है ना मेरी EB की, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ EB अगर मैं ये लिख रही हूँ, EB is equal to under root r square minus y square dy, तो ये मेरा स्ट्रिप का एरिया क्या हुआ? So dA is equal to 2 times under root r square minus y square into dy. यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ मोमेंट ऑफ द डीए मतलब मोमेंट ऑफ एरिया. एरिया की फोर्स की मोमेंट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. एरिया की मोमेंट क्या होती है? एरिया इनटू डिस्टेंस. Area into this. सो मोमेंट ऑफ डीए मतलब ये जो स्मॉल एरिया है ना, जो स्ट्रिप का एरिया है, दैट इज इक्वल टू डीए. तो अगर इस एरिया की मैं मोमेंट ले रही हूँ तो दैट इज इक्वल टू डीए इनटू वाई. वाई क्या है? मेरा डिस्टेंस है. ओके, सो वाई इनटू डीए, और डीए की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ. ओके, सो दैट इज इक्वल टू दिस. ये जो डीए की वैल्यू है ना, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ. सो दैट इज अ मोमेंट ऑफ डीए. दैट मीन्स मोमेंट ऑफ एरिया. मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. स्ट्रिप का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू डीए, उसकी अगर मैं मोमेंट ले रही हूँ तो दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस मेरा कितना है स्ट्रिप का? दैट इज इक्वल टू वाई. सो वाई इनटू डीए. ओके, अगर जो डीए की वैल्यू होती है, वो डीए की वैल्यू हम अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2y under root y r square y square into dy. So that is equal to a moment of my area. Okay, now this is a moment of for this small strip. ये क्या था? मेरी ये जो small strip है ना, इसकी सिर्फ मोमेंट ली है मैंने, इस स्मॉल स्ट्रिप की. नाउ मोमेंट ऑफ द होल शेडेड एरिया. ओके, ये जो शेडेड एरिया के अंदर एक स्मॉल स्ट्रिप मैंने अज्यूम की थी, एकदम पतली सी. ओके, तो वो जो स्ट्रिप मैंने अज्यूम की थी, जिसकी विड्थ भी है और थिकनेस है dy, तो उस स्ट्रिप का एरिया क्या आया? दैट इज इक्वल टू 2y अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू dy. नाउ सपोज अब मुझे लेना है मोमेंट फॉर द होल शेडेड एरिया. ये जो पूरा शेडेड एरिया है ना, उसकी अगर मुझे मोमेंट लेनी है तो ओके, सो मुझे क्या करना है? यहाँ पे मेरा सेंटर है, दैट इज इक्वल टू यू. यहाँ से ये डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू y. ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू y, और ये जो है मेरी रेडियस वो है r. ओके, मतलब यहाँ से ये जो मेरी रेडियस है वो है r. तो मुझे इतने सेक्शन की लेनी है मोमेंट. ओके, मतलब इतना जो मेरा शेडेड एरिया है ना, उसकी तो मेरी लिमिट क्या होगी? तो माय लिमिट इज इक्वल टू y टू r. दिस इज माय सेंटर. ओके, सो मोमेंट ऑफ द होल शेडेड एरिया दैट इज इक्वल टू पूरे शेडेड एरिया का एरिया, पूरे शेडेड एरिया पूरा जो शेडेड सेक्शन है उसका एरिया क्या होगा? अगर स्मॉल सपोज एरिया फॉर द स्मॉल स्ट्रिप, शेडेड एरिया के अंदर हमने स्मॉल स्ट्रिप का एरिया लिया है डीए. नाउ व्हाट इज द एरिया फॉर द होल शेडेड सेक्शन? दैट इज इक्वल टू सपोज कैपिटल ए. तो ये जो पूरा सेक्शन है उसका एरिया है सपोज कैपिटल ए, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से सपोज वो है y बार. ओके, ये है y बार. तो मोमेंट ऑफ द होल शेडेड एरिया दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए इनटू y बार. व्हाट इज स्मॉल डीए? स्मॉल डीए इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्ट्रिप. Small dA it is equal to area of a strip. What is capital A? Capital A it is equal to area for the whole shaded section. What is small y? That is equal to distance of the strip. What is y bar? That is equal to distance for the shaded section. Right? Confuse मत होना इसके अंदर. ये है स्मॉल स्ट्रिप के लिए, ये है पूरे शेडेड पोर्शन के लिए. ओके, सो कैपिटल ए वाई बार इज इक्वल टू लिमिट. मैंने आपको बताई है कि यहाँ से मुझे यहाँ तक की लिमिट लेनी है, ये पूरे शेडेड सेक्शन की. तो लिमिट क्या आएगी मेरी? y टू r. ओके, और ये जो पूरा है उसका मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेशन. यहाँ तक समझ आया? हेलो? यस मैम. ओके, चल तो यहाँ यस तक. मैम. ओके, ए तक पहले लिख लो, उसके बाद आगे करते.
આ તો આપણે લખેલું જ ને અહીંયા સુધીનું, અહીંયાથી લખો એ સુધી. અહીંયા 2 નથી, હા, ધ્યાન રાખજો. હેલો મેમ, હા, એક્ઝામમાં તો ડેરિવેશન આવે તો સાઈડમાં બોક્સમાં અત્યારે સમજાવ્યું છે લખવું પડશે કે ડાયરેક્ટ આપણે કરી શકીએ? કરી શકો. આ તો તમારા સમજવા માટે છે. એટલે સાઈડમાં જે બોક્સ હોય છે એ તો ખાલી એનું સમજવા માટે જ છે ને? હા. हो गया? मैम रुको ना 1 मिनट. मोमेंट इंटीग्रेशन y टू r क्यों लिया, पता चला? यस मैम. ये मेरा शेडेड सेक्शन है, यहाँ मेरी ये पोर्शन है, ये डिस्टेंस क्या है मेरा y, और ये डिस्टेंस क्या होगा रेडियस, और मुझे इतने पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन लेना है. ओके, इतने पोर्शन के लिए मुझे इंटीग्रेशन लेना है. तो दैट्स व्हाई मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, y से टू r. ओके, हो गया ना? हाँ मैडम. ओके. Now this is, now what is 2 under root r square minus y square is equal to क्या है, यहाँ पे इनवर्सली जाते हैं. ओके, सो 2 under root r square minus y square is equal to eb. It is equal to twice eb. ओके, सो ये क्या है मेरी 2eb is equal to, but what is 2eb is equal to 2eb is equal to ef, और ef is equal to क्या है, b, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा था. ओके, सो इसकी जगह पे ये जो पूरा है ये और ये 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं b लिख सकती हूँ, बिकॉज यही हमने यहाँ पे अज्यूम किया है ना, बिकॉज दिस इज दैट इज इक्वल टू व्हाट, eb, और eb ट्वाइस eb क्या है, ef, और ef इज इक्वल टू क्या है, b. ओके, सो ट्वाइस eb, सो इंस्टेड ऑफ दिस 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं क्या लिखती हूँ, b
Okay, that is equal to my small b. Okay, तो that is equal to small b y तो एज इट इज रहेगा इंटू डी वाई. समझ आया? ये जो है ना 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू बी. बिकॉज सही है ना, यही हमने पाइथागोरस से लाए थे ना, जो ई बी है. व्हाट इज ट्वाइस ई बी? ट्वाइस ई बी इज इक्वल टू ई एफ, और ई एफ क्या है? दैट इज इक्वल टू माय स्मॉल बी, विड्थ ऑफ दिस सेक्शन. ओके, अगर आप यहाँ पे फिगर में देखोगे, सपोज हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं. ओके, तो ये दैट इज ई एफ इज इक्वल टू क्या है? स्मॉल बी. और इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? स्मॉल ई बी. Now what is EB is equal to according to Pythagoras? According to Pythagoras, that is equal to under root r square minus y square. So 2 under root r square minus y square is equal to what? Small b. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं? ये जो small b की instead of this हम लोग क्या करते हैं? Small b लिखते हैं. Okay. So instead of this, because under 2 r square minus y square is equal to small b, तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ? स्मॉल b इंटू वाई इंटू डी वाई. तो ए वाई बार इज इक्वल टू वाई टू आर इंटीग्रेशन वाई टू आर बी इंटू वाई डी वाई. ओके, ये लिख लो. उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इतना सा ये एक लास्ट लाइन लिख लो. लिख लिया हूँ. ठीक है. नाउ अगेन ये हमारा आया था लास्ट. ए वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई टू आर बी इंटू वाई इंटू डी वाई, वेर माई बी इज इक्वल टू वॉट? माई बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो व्हाट इज माई बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अगर दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ओके, तो अगर इस इक्वेशन के दोनों मैम साइड, बी हाँ, इक्वल टू मैम 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा मैम. तो क्या आर होगा? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देख, ये ई है, ये है एफ है, और यहाँ पे हमारा क्या है? बी मैम. वहाँ पे बी मैम बी. ओके, इस पॉइंट का बी था. तो ई बी एफ हाँ. इज इक्वल टू मेरा क्या है? बी. ई एफ इज इक्वल टू क्या हुआ? इसको बी इस पूरे को सपोज मैं विड्थ देती हूँ. ओके, नाउ सो बी इज इक्वल टू ट्वाइस ई बी होगा. या ओके, अब ई बी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये 2 तो रहेगा ही ना, बिकॉज दिस इज 2 टाइम है, 2 टाइम ई बी है ना. ये वैल्यू क्या है? ई तो बी आपने की है. पूरा को आपने पूरा को मैम कंसीडर की. क्या पूरा कंसिडर किया? ये डिस्टेंस है, ये सिर्फ ये डिस्टेंस है ना. दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ई बी हुआ ना. और ये आर हाँ स्क्वायर वो तो माइनस है. वाई स्क्वायर किसके लिए? सिर्फ ई बी के लिए, ई एफ के लिए थोड़ी है. मेरा ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ये मैं ट्राइंगल है बोल ना रहा हूँ मेरा. मैम आपने ई एफ को भी कंसीडर किया. मैं ये बोल रहा था. मैंने कहा मैंने ई बी को ही मैम. ई एफ को मैंने बी कंसिडर किया है ना. हाँ हाँ बस यही मैम. हाँ, तो ये टोटल ही बी है ना मेरा. वही तो मैंने पहले आगे भी तो लिखवाया है ना. ये रहा बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ई एफ स्ट्रिप. ये रहा. हाँ थोड़ा ऊपर करो मैम स्लाइड. थोड़ा ऊपर करो तो पेज में. यही तो है ना. और ऊपर थोड़ा और ऊपर 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 मैम. પાયથાગોરસ નું ડેરિવેશન કરેલું છે સાઈડમાં એની વાત કરે છે. નાનું સાઈડમાં ડેરિવેશન છે ને એમાં કેપિટલ બી ये લીધેલો वाला. છે. EF इज इक्वल टू कैपिटल बी. हाँ, तो वही है ना. ट्वाइस ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम कैपिटल बी है ना ई बी. दिस इज टोटल ई एफ. ये मेरा टोटल ई एफ है. तो ई एफ इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 टाइम कैपिटल बी हुआ, ई बी हुआ. समझ आ रहा है? सो कैपिटल ई एफ यस. इज इक्वल टू 2 टाइम कैपिटल ई बी. अब मैंने क्या किया? ई बी को फाइंड किया, सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड किया. उसके लिए मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ? पाइथागोरस. तो मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माई ई बी है. समझ आया? या मैम. ओके.
ऊपर करो ना मैम, थोड़ा पेज और ऊपर करते जाओ ना। और ऊपर मैम, और ऊपर मैम, और ऊपर मैम। डन हो गया मैम। Okay. So now, what is my b is equal to? My b is equal to 2 times under root r square minus y square. So what is my b square is equal to? That is equal to 4 r square minus y square. मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया. ओके, सो b square is equal to 2 2 जा 4 और ये अंडर रूट निकल जाएगा. ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है ना, ये बी स्क्वायर वाला, उसका मैं दोनों साइड से डिफरेंशिएशन करती हूँ. डिफरेंशिएशन है बोथ साइड. ओके, सो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस बी डी बी. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी बी. ओके, यहाँ पे डी बी और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई. ओके, सपोज मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, ये इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2b ट्वाइस बी इंटू डी बी. और इसका इस इक्वेशन का आर तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y माइनस 2y इंटू डी वाई. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन. ओके, सिंपल डिफरेंशिएशन है. ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया. नाउ अगर मैं इस टर्म को, ये जो इक्वेशन है ना, उसको मैं y इंटू डी वाई की टर्म में लाती हूँ, तो ये y इंटू डी वाई की टर्म में अगर मैं ये इक्वेशन लाती हूँ, तो -8 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे. ओके, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस बी डी बी अपॉन -8, दैट इज इक्वल टू y इंटू डी वाई. ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 1/4. ओके, सो माई y इंटू डी वाई इज इक्वल टू व्हाट? -1/4 डी बी इंटू डी बी. सिंपल है. पहला मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के बाद में ये जो इक्वेशन है उसको मैं y इंटू डी वाई की टर्म में लाती हूँ, तो माई y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -1/4 b इंटू डी बी. सो सपोज ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1. समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? एकदम सिंपल है. सिर्फ दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन किया. मेरा b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्ट्रिप. ओके, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. उसका मैंने क्या किया? पहले दोनों साइड स्क्वायर किया. स्क्वायर करने के बाद मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो मुझे ये आंसर मिला, और इस आंसर को मैं लाई हूँ y इंटू डी वाई की टर्म में. नाउ ये जो मेरी वैल्यू है ना, y इंटू डी वाई, वो मैं इक्वेशन नंबर ए जो हमारा पीछे आया है, ओके, इक्वेशन नंबर ए में ये वैल्यू में इंसर्ट करती हूँ. y इंटू डी वाई की वैल्यू में इक्वेशन नंबर ए हमारा कौन सा है? ये. ओके, ये वाला जो इक्वेशन है मेरा, इसके अंदर में ये y इंटू डी वाई की वैल्यू अगर मैं इंसर्ट करती हूँ तो, ओके, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y इंटू डी वाई इन इक्वेशन नंबर ए. ओके, मैं इक्वेशन नंबर ए में y इंटू डी वाई की अगर वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, ओके, सो नाउ माई इक्वेशन बिकम लाइक दिस. मेरा इक्वेशन ये हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ y इंटू डी वाई. अगर हम y इंटू डी वाई की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ओके, सो दिस इज माई y इंटू डी वाई. ओके, b इंटू वाई इंटू डी वाई. ओके, सो इस इक्वेशन में अगर हम y इंटू डी वाई की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, फिर हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो -1/4 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट y2r b स्क्वायर इंटू डी बी. ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया. ओके, ये भी क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, और ये क्या आएगा? db. सो दिस इज इक्वेशन नंबर बी. आया यहाँ तक समझ? इतना लिख लो पहले, समझ के लिखना. लिख लिया मैम. हाँ मैम, हो गया. सबका हो गया? बाकी से 1 मिनट मैम, बाकी से 1 मिनट. हाँ 1 मिनट बाकी मैडम. बाकी है. हाँ. સમજીને લખજો. હા, ઇક્વેશન નંબર એ જોજો, વેલ્યુ કે ઇન્સર્ટ કરેલી છે તે જોજો અને સમજીને લખજો.
અગર કટ થઈ જાય તો ફરીથી જોઈન કરજો.